and do not worry about it for writing every point, because this session is recorded. Everything you will get it. So whenever I will ask to write, that time only you need to write down, otherwise not. Clear? Okay. Yes, sir. Okay, fine. Now I would like to ask a few questions. So are you ready for the questions? Small question I will ask. Are you ready for the questions? Yes, sir. Okay, fine. So in mensuration, it's a very easy thing. What shape I have drawn here? Rectangle. Rectangle. What would be the area for the rectangle? Length into breadth. Okay, so already you know the things. Area is length into breadth of rectangle, right? So that's great. What about the perimeter? Perimeter. Meenakshi, perimeter, do you know that? Yes, sir. So what is perimeter basically? Okay, I will help you. Area means, you can see here, area means this shaded region. This shaded portion is called area. Am I right? Yes, sir. But the perimeter, I will just let you know. Into side. 4 into 4 नहीं क्या होता है हाँ बोलिए. 2 into L plus B. राइट. एक्चुअली पेरीमीटर का डेफिनेशन क्या होता है मैं बता देता हूं आपको. द डेफिनेशन फॉर द पेरीमीटर इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ बाउंड्री. ओके, एग्जाम्पल लो, मैं इस कॉर्नर पे खड़ा हूं. आई विल राइट डाउन द नेम ऑफ द कॉर्नर, डोंट वरी. आई एम जस्ट राइटिंग द नेम ऑफ द कॉर्नर एज A, B, C and D, right? So when I will start my journey, so I will start from the A, so I will go to the B, am I right? Then Yes, sir. B to C I will come, Yes, sir. then C to D I will come, Yes. and then D to A I will come. So if you look here, if I am going for the boundaries, I am going for AB, I'm going for BC, I'm going for CD, Plus and B. I'm DA, right? Yes, This is the sum of the length of the boundaries, right? So what is AB? Yes. AB is L, BC is width, CD will be also L. L. So I can write it on here L, and Plus DA is W. all it will be W, right? So it will, you can see here, L plus L will give me 2L, and W Plus plus 2W. W will give me 2W. Can I take 2 as a common here? Yes. So I can take 2 as a common, so it will give me 2 times L plus W. So the perimeter of rectangle will become here 2 times L plus B. B, or you can say W, right? Yes, sir. Now, this is the formula I have written. But can you tell me what will be the definition of perimeter? So I will write down the definition. It says that sum of the length of boundary, of the closed shape. Of what? Of closed shape. Closed shape. Do you know what is open shape and what is closed shape? Any idea? So closed shape means that all the sides they are Joined together. joined together. Yes, I will just give you a hint here. Can you see this shape? Yes. So this shape is known as open because you can see this part is not closed, right? Not joined. Yes. So if I will join this line, then it will become what? It will become closed shape. Closed shape. So do you understand about the closed and open shape, right? Yes, yes. Okay, fine. So okay, and what is the perimeter definition? What is the perimeter definition? Sorry, sir. What is the definition of perimeter? The sum of length of boundary of closed shape.
Yes, sum of the length of the boundary of closed shape. Always we will utilize this definition as a perimeter. Understand? Yes, sir. Okay. So already, okay, so do one thing. Quickly write down in your notebook rectangle. Below that, write down area and perimeter. Just only these two things, nothing else. Do it fast. Sir, done. Done. Okay, good. Now, give me a second. So your rectangle is done. Okay. So just hold a moment. I will put my, okay. What about the square? What about the square? Sir, area is side into side. If I have taken side as a x, side as a x, so all side will be equal or different? Sir, equal. All side will be equal, Equal. right? So in this case, this will become x, this will become X, 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 this X. will become x, right? So Yes. in the case of a square, area would become here side Side into square. side. Side square. That means I can say x square. Am I right? Yes, sir. Okay. And what about the perimeter? 4 into side. So 4 into x I can say, or you can also say 4 into side. Please make a note of it fast. Sir, done. Done. Okay, that's great. Now I'm moving into next part of it, and that is important because these two already, I think already you know from your grade 7 or grade 6, right? Yes, sir. Grade 6 7 में आपने ये पढ़ा होगा, so that is not a big challenge for you. So I'm just recalling all things for you. Okay, अब यहाँ पर बात आती है mensuration में. Right now in mensuration we are doing area perimeter. After finishing of area perimeter we will do volume and surface, okay? Because mensuration is divided in two parts, area and volume, okay? Yes, sir. Okay, so my third thing is triangle. Third shape is what? Triangle. Do you know what is the formula? Okay, how many triangles do you know that? Huh? Meenakshi, how many types of triangles do you know? Sir, 3. Can you tell me the name? Isosceles triangle, Okay, equilateral triangle, okay, and scalene. okay, that's great, that's good. Okay, just give me a moment here. I'm just taking down some of the triangles. Okay, just a moment, please. Okay. So you can see I have uploaded the shapes of triangle here. Can you see that? Yes, sir. Okay. So I will discuss one by one quickly. This is the triangle. First one is known as right angle triangle, correct? Right angle triangle. Okay. So in right angle triangle, Yes, sir. suppose this is given me as a base and this is given me as a height, correct? Yes, sir. So the first one, I'm just going to divide in a few parts here. Just hold a second. So the first one is right angle triangle, right? Right Yes. angle triangle. What would be the area for right angle triangle? Sir, half into base into height. Good. Half into base into height. Okay, that's great. And what about the perimeter? Sum of all sides. Sum of all sides, right? So whatever the sides Yes. they have given, we can just write it down. Okay, no problem. Okay, I'm coming towards the third. Okay, so here you can see I have given the number 1, number 2, number 3, and this is the number 4 one. So in the number 3 we have equilateral. What do you mean by equilateral? All the sides are equal. Okay, how to find the area of equilateral triangle? Do you know that? Half into base. Is the height given yes. to you? Is the height given to you?
No, sir. Not given, right? Okay. Yes. In isosceles, okay, I will take a, okay, and what is a scalene triangle, Meenakshi? All the sides are, Scalene, I'm talking scalene. sir, yes, they are different lengths. They are of all different lengths. They are Good, not equal. good, right, correct. Okay, that's fine. Now, I will tell you about the triangles, how to find the area of triangles. Okay, this is our new topic here, and one by one we will discuss. So, for the first one, right angle triangle, you know very well, right? Yes, sir. Okay. Now, I'm going to tell you first the scalene triangle, how to find the area for the scalene triangle. Is that clear? Yes, sir. Okay. Just give me a moment. And we will do some problems also, so don't worry. Just hold a second. I have taken the shape of the scalene triangle. So by shape of the scalene triangle, what you can see, all the sides are different here. Yes, sir. Okay, so now I'm just taking this side as a, okay, the this one I have taken the triangle A B C, triangle ABC I have taken. Okay, Yes, sir. this side I have taken as a side. A means, small a means the length of the side, right? Yes, sir. This AC I have taken as the length as a B, and this I have taken as a C, a small c. Don't, the length are in small letters. Okay, don't confuse. Okay, I will change the name of the triangle so you will not be confused in that case. Otherwise, you can confuse. Sir, So, it's okay. so I will write it down here PQR. Can you see the triangle name as PQR? Yes, sir. Okay. Now, what is the thing? What we need to do here? We have to find the area of triangle PQR. What is our job now? Area of a scalene triangle, right? Yes, sir. Okay. I think, have you heard about the perimeter? How we can find the perimeter for this triangle? Tell me. Sir, sum of all sides. Sum of all sides. So I can write down sum of all sides means A A plus plus B. B plus C. Any problem in this? No, sir. Now, listen me. Another word comes semi-perimeter. What comes? Semi-perimeter. Semi-perimeter means half of the perimeter. And we denoted semi-perimeter as S. How we can denote? With the S. help of S, we can denote the semi-perimeter. Semi-perimeter means half of the, मतलब perimeter का half हो जाता है. Okay? So let's do A plus B plus C by 2. Any problem in this? सर तो ये जो शेप है इसमें कैसे पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर मतलब कि कितना एरिया होगा? I'm coming to the area. मैंने अभी area लिखा नहीं है. Just going to write down the formula for area. Sir, I'm asking that this perimeter means A plus B plus C. नहीं, perimeter का मतलब हो गया length. Perimeter का मतलब हो गया The total length of the triangle. ये length of the boundaries. Can you see the red lines? Yes, sir. This boundary length. This boundary length. So, sir, this is like A plus B plus C is the total length of the triangle. Correct. So, semi perimeter. सेमी पेरीमीटर नहीं, सेमी पेरीमीटर को मैं बता रहा हूं भी. सेमी पेरीमीटर हम फॉर्मूला में यूज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. वी आर नॉट गोइंग टू शो ऑन द इमेज. ओके, दिस इज only for solving the problem. This you can denote on the shape, but this one you cannot denote. Semi perimeter you cannot denote on the shape. This is only for the purpose of, ये सिर्फ इसी में यूज आता है. This is only for the purpose of finding the area, not for denoting on the shape. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. But sir, what will? I will write. I'm writing. Just listen me. I'm just going to write down here. We have to write down the area of triangle. What kind of triangle it is? Scalene. Scalene. Condition is that when all sides are given. What is the condition? All sides are given. All sides are given. Because अगर height दिया हो और base दिया हो तो half times base times height लिख सकते हैं, right?
लेकिन अगर हाइट नहीं दिया तो हमें सिर्फ ओनली साइड्स गिवन है, तब एरिया कैसे निकालेंगे, मैं उसके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं, एंड दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड Heroin's formula. What's name is? Heroin's formula. फॉर्मूला। ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन द फॉर्मूला, एंड इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। आई एम राइटिंग द फॉर्मूला S minus A, S minus B, and S minus C. This is the formula. With the help of this, you can find the area of the triangle. What is the S here? S is the semi-perimeter which I have written on the top. Okay. What is the A and B and C? A, B, C are the sides of the triangle. यहाँ तक clear है? Do you clear till here? Yes sir. Okay. अभी मुझे I मालूम, didn't get this formula area. I'm coming to this. Don't worry. I'm taking one problem and then I will tell you how to do this. Okay. आप एक काम करो, आप इसको जल्दी से नोट सेव कर लो, सिर्फ नोट कर लो. I'm coming to this problem. Can you note it down, please? Yes sir. Yeah, हाँ, प्लीज नोट कर लो. मैं अभी एक क्वेश्चन ले रहा हूँ और उस क्वेश्चन से मैं आपको ये क्लियर हो जाएगा. डू नॉट वरी अबाउट इट. Done? Sir, 1 minute. Okay. Sir, done. Okay. चलो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और उस क्वेश्चन से मैं सॉल्व करता हूँ. Can you read the problem, please? Find the perimeter and area of a triangle whose sides are of length 52 centimeter, 66 centimeter, and 56 centimeter and 60 centimeter respectively. Right. Okay. So you can see here, they have not given me height and they have not given me base, right? They have what given me? They have given me the length of all sides. Like this is 52, this is 56, and this is what? 60. 60. And all are in centimeter, correct? We have Yes. to find the perimeter and we have to find the area of triangle. Two things we have to do in this, right? So let's work out. Perimeter they have asked me, तो हम simply perimeter के लिए क्या करेंगे? आप बताओ मुझे perimeter के लिए. Sum of all sides. So we will add them together. It will become Yes. how much? Tell me. 168. It will become here. I will just, okay. So you are saying, give me a second. So you are saying me that it's going to be 168, right? So I will just write down here 168 centimeter. Any problem till here? No, sir. अच्छा, अब चलो बात करते हैं एरिया की हम. So I'm just going to write down here. Area of this symbol is known as triangle. देखो मैंने ये बनाया है ऐसे, ठीक है? Can you see the symbol? Yes, sir. So इसको कहते हैं area of triangle. So मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ. I'm writing down the formula जो मैंने last time लिखा था. S times S minus A times S minus B and S minus C. अब बात करते हैं what is the S value here? So S is nothing but half of the perimeter. Just told you earlier, right? Yes. So if I just do the half of the perimeter, it will become how much? 84. It will become here 84 centimeter. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको अभी तक समझने में? नहीं सर. अच्छा, अब ये साइड हम मान लेते हैं कि this is the A, this is the B, and this is the C. So let's work out with me. So I'm just doing S की वैल्यू यहाँ पे 84 पुट कर दो, ठीक है? ब्रैकेट 84 माइनस 52, उसके बाद फिर से करो 84 माइनस 56 एंड अगेन आप करो 84 माइनस 60. जरा सा मुझे आप माइनस सब्ट्रैक्ट करके सब बताओ क्या क्या आएगा. 84 तो 84 हो गया, राइट? हाँ जी सर. इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 32. इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 32. गुड.
इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 84 माइनस 56। 28. इसको सॉल्व करेंगे तो 28 आ जाएगा। गुड, परफेक्ट। एंड इसको सॉल्व करेंगे तो 24. अच्छा 24। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम, देखो यहाँ पे एरिया तो निकल गया। अभी वेट, बोलना नहीं, मैं बता लेता हूँ फिर आप बोलना पूरा। प्रॉब्लम क्या आएगी आपको, अगर आप यहाँ पे देखो ये नंबर्स बड़े हैं, राइट? Yes, sir. और आप इन सबको पहले तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके लिए बड़ा, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, राइट? और Yes, फिर sir. ये सिंबल क्या होता है, ये वाला सिंबल Square root. स्क्वायर। अब बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकालना इट्स आल्सो अ टफ जॉब, राइट? Yes, sir. मैं इसके लिए एक सॉल्यूशन आपको देता हूँ। ओके, बहुत आसान है, आप जानते भी होगे, बट आई एम जस्ट गिविंग यू वन सॉल्यूशन। एक बात बताओ मुझे आप, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10. कैसे पता कि 10 होता है? हाउ Sir, डू हाउ डू यू नो दैट इट्स 10? because 10 into 10 is 100. Right. So if I go for 100, so can I write down 2 factorize? Can I do like this? Yes, sir. So ये 25 हो गया जी, ये 5 हो गया, 5 हो गया, तो 100 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 2, 5 into 5। अब हम पेयर बनाएंगे, तो एक पेयर से एक नंबर नीचे आ जाएगा, दूसरे पेयर से दूसरा नंबर नीचे है, एंड इट गिव्स मी हाउ मच आंसर? 10. इस तरीके से हमको मालूम चला था कि ये 10 है। आपने किया होगा बहुत पहले, किया है ना ये स्क्वायर रूट Yes. निकालने का? आई थिंक ग्रेड 7 में या नहीं 8 में किया होगा शायद स्क्वायर रूट का, राइट? Yes, sir. अच्छा, सेम प्रोसेस। देखो मैंने ये इसलिए लिया एग्जांपल क्योंकि ये आपको पता था कि 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, राइट? और हमने वो प्रूव भी कर लिया। प्रूव करने का तरीका ये हुआ कि हमने नंबर्स को डिवाइड कर लिया, राइट? Yes, sir. अब देखो हम करेंगे क्या अपने प्रॉब्लम में। इस प्रॉब्लम में देखो, ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूं, बहुत अच्छे से ध्यान देना। ये 84 है, पहला नंबर क्या है? 84 है। हाँ जी. ओके, देखो मैं राइट में थोड़ा लिख रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। 84 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो क्या क्या नंबर मिल सकता है? 2 टाइम्स, 40. Sir, 42. oh sorry, 42, sorry मैंने गलत लिखा, 42, and then again I will go by 2, so it will give me how much? 21. Okay, then 3 से 3. जाएंगे so 7। 7. तो 84 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 3 into 7। कोई प्रॉब्लम? No, sir. अच्छा, 32 को मैं इधर रफ कर रहा हूँ, ओके, दिस साइड आई एम डूइंग जस्ट रफ। 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2. 16, Yes. और आई कैन 4. राइट 4, राइट? हाँ. सो 2 टाइम्स 4 टाइम्स 4। 4. अच्छा, 28 को क्या लिख सकते हैं? तो आई कैन राइट 2 टाइम्स 7। हेलो? Yes, sir. एंड 24 को क्या लिख सकते हैं हम? देखो मैं लिख 2. देता हूँ, ये 2. हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 and 3, राइट? Yes, So sir. we can write 2 times 2 times 2 times 3। 3. अब चलो, अब हम पेयरिंग करना शुरू करते हैं। देखो मैं पेयरिंग के लिए रेड पेन का यूज करता हूँ। एक पेयर यहाँ बन गया, तो बाहर ले लें इसको। कैन आई टेक इट आउटसाइड? Yes, sir. Okay, this 3 makes the pair with this 3, so can I take it this 3 outside? Yes. Okay, this 7 makes the pair with this 7, so can I take it the outside? Yes. This 4 makes the pair, so can I take the 4 outside? Yes. Acha, this 2 makes pair, so can I take this 2 outside? Yes. This 2 makes pair, so can I take this 2 also outside? Yes. एंड ये बच गया इसके साथ पेयरिंग करने के लिए, तो इसको भी हम बाहर ले लेते हैं 2। तो जरा मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 6, ये हो गया 28, और ये हो गया 8। जरा तीनों को मल्टीप्लाई करो। देखो मैंने क्विकली कर दिया इसको, कैन यू सी दैट? Sir, या टेल मी। आपने मल्टीप्लाई कर दिया? क्या? आपने मल्टीप्लाई किया? यस आई डिड। यहाँ पे देखो कहाँ पे प्रॉब्लम आई आपको, बताओ मुझे। नहीं सर, मैं इनकी बात कर रही हूँ 6 और 28 वाले की। हाँ हाँ, तो मल्टीप्लाई करो ना, मैंने नहीं किया अभी, आई हैव लेफ्ट फॉर यू। वन 464। 28 times 6 will give me 168 times 8, नहीं 1344। फिर
द आंसर इज कमिंग 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है कैसे सॉल्व करेंगे अभी प्रॉब्लम इसमें? यस सर। चलो मैं एक प्रॉब्लम और लेता हूँ सेम टाइप में और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसको नोट कर लिया आपने? नो सर। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। सर डन। Then okay, fine. Just give me a moment. Okay, give me a second. I'm taking another problem for you, and this is something like this. इस प्रॉब्लम को अच्छे से रीड करना पहले आप, ठीक है? प्रॉब्लम को कभी भी अच्छे से रीड करते हैं तब उसमें हम प्रोसेस बनाते हैं। कैन यू रीड द प्रॉब्लम प्लीज? The lengths of the sides of a triangle are in ratio 3:4:5 and its perimeter is 144 centimeter. Find the area of triangle and the height corresponding to the longest side. ओके, मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया है, राइट? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर साइड्स? 3:4:5, right? So can you hear me? Yes sir. Yeah. So इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको? 3:4 sir. नहीं पता। देखो रेशियो में जब कोई चीज दी जाती है तो उसको हम कहते हैं, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, मैं इस पेज पे एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। मान लेते हैं आपके पास 100 रुपीज है। कितना रुपीज है? 100 rupees. आपके पास 100 रुपीज, आपका नाम मैंने ए डाल दिया, मेरा नाम बी है। मेरे पास 500 रुपीज है। कितना रुपीज है? 500 rupees. अब हम दोनों का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो। रेशो होता क्या है? मैं बता रहा हूँ, अभी वही वही चीज बता रहा हूँ मैं। मैंने लिखा a अपॉन बी, सो हम 100 अपॉन 500 लिख सकते हैं। हाँ जी सर। इसको जरा कैंसिल करो, तो ये कैंसिल कर दिया तो कितना आंसर आ रहा है? 1/5. 1:5. So ratio means it says 1:5. अब इसका मतलब क्या हुआ मैं बता रहा हूं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास किसी भी मतलब कोई एक पार्ट है, कोई एक पार्ट है, टोटल हमारे पास कितने रुपए थे? 100 नहीं 600. टोटल हमारे पास 600 थे। 600 को मैं 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। 1 2 3 4, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, 6 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। देखो 600 को, कोई दिक्कत? नो सर. आपके पास कितना है? 100. नहीं, यहाँ पर देखो नीचे रेशियो में देखो, ओके 1. 1। तो ये एक बॉक्स में आपका नाम लिख दूंगा मैं, ठीक है? और मेरे पास कितना है? 5। तो मैंने 5 बॉक्सेस में अपना नाम लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि रेशियो कहने का मतलब कि कोई भी पार्ट डिवाइड होता है 2 चीजों में या 3 चीजों में या 4 चीज, जितनी की रेशियो दे रखी है। A:B:C दे रखा है तो 3 लोगों में डिवाइड होगा। A:B दे रखा है तो 2 लोगों में डिवाइड होगा, ठीक है? अब ये देखो 600 को 2 लोगों में डिवाइड किया तो आपके पास 1 पार्ट रह गया, मेरे पास कितने पार्ट रह गए? 5. 5 पार्ट रह गए। सो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल्ड इट द रेशियो ऑफ इट इज 1:5। इज इट क्लियर नाउ? नो क्लियर सर. नहीं हुआ? ओके ठीक है, मैं दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ। ओके ओके ठीक है, एक और एग्जांपल रेशियो का मैं आपको लेके समझाता हूँ। You have the 10 chocolates, okay, and your brother has 20 chocolates. कितना हो गया?
10 and 20, राइट? टोटल कितना Yes. है? टोटल चॉकलेट कितना है? 30. टोटल चॉकलेट 30 है। आपके पास कितना है? 10. आउट ऑफ 30, राइट? Yes. तो कितना हो गया? 1. 1/3 हो गया, एम आई राइट? 10 chocolate out of 30 chocolate if you have, so Okay. what we can call it here, 1/3 of it. Yes, sir. आपके ब्रदर या आपके सिस्टर के पास 20 चॉकलेट आउट ऑफ 30 चॉकलेट, तो इनके पास कितना बच गया? 2/3। 2/3. सो अगर मैं इन दोनों को देखूं, रेशियो अगर मुझे देखना है इन मैथमेटिक्स, so it gives me what, 1/3 is to 2/3, so 3 नीचे सेम आ गया, so हम उसको रिमूव कर देंगे, so it will become 1:2। मतलब अगर आपके पास एक पार्ट है तो उनके पास 2 पार्ट है। अभी क्लियर है? मैं एक एग्जांपल और लेता हूं जिससे मैं आपको समझा दूं। सर तो सपोज हम इसको रेशियो में क्यों लिखते हैं? रेशियो में इसलिए लिखते हैं कि 10 और 20 लिखना हमारे लिए टफ जॉब है, ठीक है? अब मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। हमने रेशियो में ये लिख दिया ना यहाँ पे 1:2, कोई दिक्कत है? नहीं सर, अच्छा, सर अब फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं, है। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू द कॉन्सेप्ट। अभी मैंने 10:20 का एग्जांपल देकर मैंने रेशियो लिख दिया 1:2, राइट? यस। रेशियो क्यों लिखते हैं, दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू नाउ। अब मान लो आपके पास, मैं बोलता हूं कि 1:2 का रेशियो ऑलवेज चलेगा आपके और आपके सिस्टर या ब्रदर में, 1:2 का रेशियो कंटिन्यूअस रन करेगा, यही रेशियो में आपको चॉकलेट्स मिलेंगे। मैंने क्या बोला? 1:2 के रेशियो में ही चॉकलेट्स मिलेंगे आपको ऑलवेज, ठीक है? अब एग्जाम्पल लो कि आपको मैंने 50 चॉकलेट्स एक दिन लाकर दे दिए। कितने चॉकलेट्स लाकर दिए? 50 चॉकलेट। तो आपके ब्रदर को कितना मिलेगा? 20। नहीं। हाँ बोलो बोलो, जस्ट डबल। कितना है ये? आपको सर अगर 30, 50, सर 50 तो 30 का डबल नहीं होता ना। क्या क्या? 50 30 का डबल तो नहीं होता ना नहीं, सर। 30 का नहीं सोचना, 30 का नहीं सोचना। मैंने इस एग्जाम्पल से मैंने रेशियो बनाया और उस रेशियो से मैंने कहा, आप अब 30 का कॉन्सेप्ट भूल जाओ, अब रेशियो के कॉन्सेप्ट में आओ। रेशियो के कॉन्सेप्ट में मैंने बोल दिया कि 1:2 का रेशियो में ही आपको चॉकलेट मिलेगा ऑलवेज, ठीक है? कभी भी जब भी आपको चॉकलेट मुझे देना होगा तो मैं आपको इसी रेशियो में दूंगा, ठीक है? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने आपको 50 चॉकलेट दिया, मैंने आपको कितने चॉकलेट दिए? 50, तो आपके भाई को कितना मिलेगा? 100। क्यों? क्योंकि रेशियो कहता है इट्स डबल ऑफ इट। रेशियो क्या कहता है? इट्स डबल ऑफ इट। अगर मैंने आपको 200 चॉकलेट्स दे दिया तो आपके भाई को कितना मिलेगा? 400। 400। तो सब में रेशियो निकाल के देखो, सबका रेशियो बराबर आएगा। भले आपको यहाँ 50 चॉकलेट्स मिल रहा है, आपके भाई को 100, आपको जब 200 मिला तो आपके भाई को 400। बट सर अगर यहाँ पे 1:3 होता है तो 1:3 होता तो मैं बताता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। इफ द रेशियो विल बी हियर 1:3, सो एग्जांपल लो कि आपको मिला 50 चॉकलेट्स तो आपके भाई को मिलता 150। अगर आपको मिला 200 तो आपके भाई को मिलेगा 600। अगर आपको मिला 300 चॉकलेट तो आपके भाई को मिलेगा 900 चॉकलेट। ये दिस इज कॉल्ड द रेशियो। अब देखो, ये मैं बड़े नंबर्स लिखना मेरे लिए टफ जॉब है, लेकिन रेशियो लिखना मेरे लिए इजी जॉब है। सो रेशियो जस्ट टेल अस, अब देखो सब में, आप देखो सब में एक कांस्टेंट नंबर होगा। अब देखो मैं इसको दिखाता हूँ कैसे, a is to b, तो 50/150, is it coming 1/3? So 1/3 means it's we in ratio we can write 1:3. यहाँ देखो, यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ 200/600, so it gives me how much? 1:3. So ratio will be remain same for all. So ratio just represent what? Ratio just represent the division of the parts, division of parts. अब भले ही नंबर अलग हो, वैल्यूज अलग हो, but ratio will be the remain constant here. Is this clear with you? ओके सर। अभी क्लियर है रेशियो का?
और रेशियो का दूसरा तरीका ये होता है कि जो पार्ट मैंने एग्जांपल लो, आपको वही पहला एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे दिया था, सॉरी मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि अगर आपके पास 600 रुपीज है और रेशियो कहता है कि 1:5 में डिवाइड करना है, क्या कहता है रेशियो? 1:5 में डिवाइड करना है। तो मतलब पहले तो आप इस 600 को 6 पार्ट में डिवाइड कर दो, क्योंकि टोटल कहता है 6 पार्ट, राइट? अब आपको कितना जब मिलेगा उस 6 पार्ट में से? 1 पार्ट। 1 पार्ट तो 1 पार्ट मतलब 100 रुपीज। मुझे कितना मिलेगा? 5 पार्ट, 500 तो 500 रुपीज मिल जाएगा। अब सिंपल देखो, मैं इसी को यहाँ पर एक काम करता हूँ, 600 की जगह मैं इसको 1200 कर देता हूँ। रेशियो में सेम रखता हूँ, लेकिन मैंने क्या बोला कि अब हमारे पास टोटल मनी कितना है? 1200। इधर लेफ्ट हैंड साइड भूल जाना, राइट हैंड साइड सिर्फ देखना भी आप, ठीक है? तो मैंने अभी कह दिया जी कि आपके पास टोटल 1200 है और मनी को डिवाइड करना है 1:5 में, ठीक है? तो आप अपने पास कितना रखोगे, मुझे कितना दोगे, बताओ? कितना पैसा अपने पास रखोगे, कितना पैसा मुझे दोगे आप? तो 1200 को पहले 6 पार्ट में डिवाइड कर लो, ईच पार्ट निकल जाएगा। तो 200 आएगा ईच पार्ट। ईच पार्ट 200। आपके पास कितना है? ओनली 1 पार्ट, तो आपको कितना मिलेगा? 200। मुझे कितना मिलेगा? 1000। 1000। डू यू क्लियर? यस सर। अभी मैं इसी को और भी एग्जांपल लेके बना देता हूँ। अब मान लो ये पैसा जो था वो हो जाएगा कुछ 2400 रुपीज। कितना हो जाएगा? 24। 24 नहीं, 25 कर लो आप। मैंने यहाँ कर दिया 2500। कितना रुपया है? 25। 25। जस्ट गिव मी सेकेंड। और मैं एक काम और कर रहा हूँ, मैंने बोला कि अब हम दोनों के बीच का जो, मैं सब रब कर देता हूँ, गिव मी सेकेंड। मैंने अब ये बोला 2500 रुपीज हम दोनों के बीच का रेशियो है 2:3। क्या रेशियो है? 2:3। 2:3 रेशियो है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस पैसे का 2 पार्ट आपको मिलेगा और 3 पार्ट मुझे मिलेगा, ठीक है? तो यस सर। सबसे पहले आप क्या करोगे? 2500 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे? 5। 5। क्यों? क्योंकि टोटल रेशियो 5 है, राइट? 2 यस + 3 दैट गिव्स मी 5। 5। तो मैं एक काम करता हूँ, 2500 को 5 से डिवाइड करता हूँ। ईच पार्ट का कितना मिल जाएगा मुझे? 500। ईच पार्ट मतलब 1 पार्ट इज 500। 500। आपको कितने पार्ट्स मिले? 2। तो कितने रुपए हो जाएंगे आपके पास? 1000। गुड। और मुझे कितने मिले? 3 पास हो जाएगा 1500। So you can see the ratio, how in the ratio it's easy to divide the money and all. Can you see that? यस। Okay, so this is the thing. Okay, अब सिंपल सी बात है, अभी 2500 रुपए 2500 रुपीज था 2:3 के रेशियो में, राइट? मैं इसी पैसे को मैं काम करता हूं, मैंने कह दिया जी कि अब नेक्स्ट मंथ हमारी इनकम हो गई। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, हमने एक पार्टनरशिप शुरू किया था, बिजनेस, ठीक है? उसमें कहा कि आपको पैसे जाएंगे 2 रेशियो में, मुझे जाएगा 3 रेशियो में। क्लियर है? अब नेक्स्ट मंथ, कैन यू हियर मी? यस यस। नेक्स्ट मंथ हमारी इनकम हो गई कुछ 40,000 रुपीज। कितनी इनकम हो गई? 40,000। 40,000। हमने पार्टनरशिप शुरू की थी 2:3 के रेशियो में, मतलब 2 पार्ट आपको जाएगा, 3 पार्ट मुझे जाएगा, ठीक है? तो अब आप मुझे बताओगे कि आपको कितना रुपया मिलेगा, मुझे कितने रुपए मिलेंगे? 40,000 इनकम हुई है इस मंथ। 16,000 मुझे मिलेंगे। 16,000 आपको जाएगा, गुड। एंड मुझे 3 8 24,000। 24,000। अब यही चीज बदल कर देखो, एग्जांपल लो कि जून मंथ में आपको इतने मिले, मुझे इतने मिले, ठीक है? क्योंकि जून मंथ में टोटल इनकम 40,000 हुई थी, राइट? यस सर। अब एग्जांपल लेते हैं कि जुलाई मंथ में हमारी इनकम हो जाएगी कुछ 60,000। कितनी हो जाएगी? 60,000। तो जुलाई मंथ में आपको कितना पैसा जाएगा, मुझे कितना जाएगा? मुझे जरा बताओ कैलकुलेट करके।
मुझे जाएगा 15,000। 5 12 नहीं, 15 क्यों जाएगा, ज्यादा जाएगा। आप इसको 5 से डिवाइड कर दो ना सीधा, 60,000 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो 12,000 हो जाएगा ईच। 24,000। गुड, तो आपको चला गया 24,000, मुझे चला जाएगा भारतीय 36,000। 36,000। अब देखो, क्या हमें रेशियो बदलने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं सर। लेकिन जैसे इनकम चेंज हुआ, टोटल इनकम, वैसे यहाँ की वैल्यूज भी बदल गई। हम अपना यस अपना शेयर लेके घर चले आए, राइट। यस सो रेशियो हेल्प, इसमें इस तरह के प्रॉब्लम्स, इस तरह की जब चीजें होती हैं तो वो हेल्प करता है, अंडरस्टैंड। यस और आप देख रहे होगे 12,000 इज द कांस्टेंट फॉर दीज नंबर्स, राइट। यस अब हम तो रेशियो क्लियर हो गया। यस सर। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन में। इसमें कहता है कि द लेंथ ऑफ द साइड्स आर इन रेशियो 3:4:5। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं लेट लेंथ ऑफ PQ, लेंथ ऑफ PQ इज 3x। डू यू नो दिस सिंबल मीन्स, मैंने जो बनाया नीचे, यस सर। क्या होता है मतलब इसका? कि नीचे भी लेंथ ही आएगा, मतलब सेम है। सेम है, राइट। So I am writing length of PR is 4x and the length of QR is 5x I have taken. कोई problem? सर एक्स क्यों? क्योंकि एक कौन रेशियो, देखो आप जब इस रेशियो में बदला था ना, यहाँ पे देखो जरा आप इसको 24 और 36 को रेशियो में जरा कन्वर्ट करो, एक नंबर, कॉमन नंबर कैंसल होगा, कॉमन नंबर जो हमारा ये 12,000 कांस्टेंट था वहाँ पे राइट एक्स वो है। राइट करेक्ट। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अभी हमें पता नहीं है ना किस रेशियो में कट रहा है, राइट। तो हमने Yes. एक नंबर ले लिया कि उस पार्ट से वो कैंसिल हो जाएगा। आपने सही पकड़ा, 12,000 वी कैन कंसीडर हियर, मतलब इस क्वेश्चन के लिए नहीं, पुराने वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो हमने ऑलवेज लेंथ जब भी लिखना होता है तो एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं अभी बताऊंगा कैसे कितना होगा, डोंट वरी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर इज हाउ मच? 144. ओके, पेरीमीटर is 144. पेरीमीटर का डेफिनेशन कहता है लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज, राइट। Yes. So can I write down here length of boundaries means 3x plus 4x plus 5x is equals to 144. Can I say that? Yes. ये कितना हो जाएगा टोटल लेफ्ट हैंड साइड? 12x. अच्छा 12x, that is equals to 144. Yes. So x value is how much? 144 by 12. 144.12. So it gives me 12, right? Yes. So this means PQ will become how much? PQ will become how much? 3 into 12, 36. 36 centimeter. I am circling it. 4x कितना हो जाएगा? 4 into 12, 48. 48. And 5x कितना हो जाएगा? 5 into 12, 16. So now you can see these numbers are 36, 48 and 60. अब मालूम चला कि x क्यों लिया था मैंने? Yes sir. इससे हमें क्या मिल गया? इससे हमें लेंथ ऑफ द साइड्स मिल गया, लेंथ ऑफ द साइड्स मिल गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? No sir. ओके, अभी हम इसमें पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अभी हमारे पास ऑल साइड्स आर विद अस, ऑल साइड्स आर विद अस और नॉट? टेल मी। Yes sir. ओके, सो फॉर ऑल साइड्स आर विद अस, सो वी हैव टू फाइंड, ओके मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ एक, गिव मी अ सेकंड। When all sides are with us, so we need to find S value. What we need to find? S value. S value. So S value is what? S value is the perimeter का half. Yes. तो अगर सब पेरीमीटर मालूम है तब तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर पेरीमीटर पता नहीं होता तो हम 36 प्लस 48 प्लस 60 कर लेते हैं। Yes sir. तो हमें पेरीमीटर पता है 144 by 2. So it gives me how much? 72. अब देखो इसमें एरिया लिखते हैं हम, एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। सो मैं फॉर्मूला के लिए लिख दूं ये रूट अंडर, और मैं यहाँ क्या लिखूंगा? S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। मैंने फॉर्मूला बार बार इसलिए लिखा है ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। ओके, अब देखो मैं इसके लिए लिखूंगा यहाँ पे
नहीं, मैं नीचे ही लिख देता हूँ, ज्यादा बेटर होगा, जगह नहीं है अभी, so we will utilize next page. Okay, so look here, so can I write it down here? 72 minus 36, 72 minus 48, and 72 minus 60. 60. I can write like this. Yes, Okay, sir. now work out here. 72 इसको रिजॉल्व करो, कितना आएगा? 36. गुड. 36 इसको रिजॉल्व करो, कितना आएगा? 24. So it gives you 24, right? Next part, 12. it gives you 12. अब इस सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, राइट? Yes, तो sir. हम देखो कैसे करते हैं, मैं यहाँ तरीका बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो. 72 है यहाँ पे, कैन यू सी दैट? Yes, sir. और ये 36 है, राइट? अगर मैं Yes. देखूं तो 72 को मैं अगर 2 टाइम्स 36 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या? No. और 36 ऑलरेडी है, तो मैं क्या इसको 36 छोड़ दूं? क्यों छोड़ दूं? क्योंकि 36 का पेयर बन जाएगा, देखो आप, राइट? तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर. अच्छा, 24 को मैं 2 2 into टाइम्स, 12. गुड, 2 into 12, और इस 12 को एज इट छोड़ दो ताकि पेयर बना लेगा, राइट? अब Yes. देखो 36 पेयर बना लिया तो 36 यहाँ बाहर आ गया, 12 पेयर बना लिया तो 12 बाहर आ गया, और ये 2 इसके साथ पेयर बना लेगा, राइट? सो अब ये हो जाएगा 36 into 12 into into 12 into 2. So it gives me how much? It gives me 864, and unit are centimeter, so centimeter square. This is the area of the triangle. Do you clear? हाँ बताइए. जब हम एरिया में मल्टीप्लाई करते हैं हम्म, तो उसमें हम करते हैं, जैसे अगर किसी स्क्वायर की निकालनी होती है तो साइड इनटू साइड होता है, करेक्ट. दोनों में सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होते हैं तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर बन स्क्वायर, जाते हैं. करेक्ट करेक्ट. तो इसमें तो सर 3 डिजिट है ना? नहीं, 3 डिजिट नहीं है ये. आप इसको डिजिट मत मानो, आप ऑलवेज याद रखो, एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है. क्या होता है? यूनिट स्क्वायर में होता है, और वॉल्यूम का यूनिट क्यूब में होता है, ठीक है? नंबर्स पे नहीं जाना है हमें. क्लियर है? हेलो? ओके सर. ऑलवेज याद रखना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एरिया जब भी लिखते हैं तो डैश 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 यूनिट स्क्वायर. एज एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 42 मीटर स्क्वायर. ये ऑलवेज स्क्वायर में ही रहता है, कभी भी ये उस पर डिपेंड नहीं करता. और जब भी हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो डैश 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 यूनिट क्यूब. क्या होगा ये? यूनिट क्यूब. एज एग्जाम्पल 44 सेंटीमीटर क्यूब, 126 meter cube, 5286 किलोमीटर क्यूब. डजेंट मैटर. देखो ये ऑलवेज क्यूब में रहता है, ठीक है? और एरिया वाला ऑलवेज स्क्वायर में रहता है. आपने जो कॉन्सेप्ट मुझे बताया, यस यू आर राइट, आई एक्सेप्ट योर कॉन्सेप्ट, वैसे करते हैं. लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जब आप मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं, मैं इसमें दिखा भी दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कैसे सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक है? देखो यहाँ पे, देखो मैं दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है वहां पे. मैंने लिखा था एरिया, राइट? कैन यू हियर मी? यस यस. एरिया, ये एस लिखा मैंने, ये एस माइनस ए लिखा मैंने, ये एस माइनस ए लिखा मैंने, ये एस सॉरी बी लिखा, और ये एस माइनस सी लिखा, राइट? यस. यूनिट की बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग रिगार्डिंग द यूनिट. इसका भी यूनिट सेंटीमीटर में आएगा, इसका भी यूनिट सेंटीमीटर में आएगा, इसका भी यूनिट सेंटीमीटर में आएगा. मतलब मीटर जो भी हो, हमने सेंटीमीटर ले रखा है, सब सेंटीमीटर में आएंगे. आएंगे नहीं आएंगे बताओ? यस. कैसे? 72 सेंटीमीटर, तो 72 तो चलो वहां नंबर लिख दिया, सेंटीमीटर यहाँ आ गया. यस. आपने 72 माइनस 36 किया तो भी इसकी यूनिट सेंटीमीटर ही रहेगी ना, सबट्रैक्ट करने पर, इसलिए Yes. मैंने सब लिख दिया. कोई दिक्कत? नो सर. अब देखो, सेंटीमीटर स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया.
अच्छा ठीक है सर। अब ये क्या हो गया, अब ये पेयर बना दिए, यस तो पेयर बन गया तो क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर आ गया। दिस इज द यूनिट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने का यूनिट तरीका जो आपने कॉन्सेप्ट बताया मुझे, ठीक सर, है। ये ऐसे नहीं हो सकता, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो नीचे का सेंटीमीटर तो सेम है तो 2 + 2 हो जाएगा, नहीं नहीं मतलब नहीं, पावर प्लस हो हाँ जाएगी, तो फिर ऐसे भी कर सकते हो। स्क्वायर रूट, फिर हाँ, स्क्वायर रूट है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। वो भी कर लो, वो भी कर सकते हो, मैथ्स कैसे भी कर सकते हैं आप। तो ये हो गया सेंटीमीटर पावर 4 रूट अंडर, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर 4, स्क्वायर। और ये ऐसे, सो यस सेंटीमीटर 4 इंटू 1/2, ये कैंसिल कर देगा। सो सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हो आप, इट्स योर चॉइस। मैथ्स तो कैसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है, क्लियर है अभी। ठीक है। लेकिन यस जो मैंने एक चीज बताई आपको यहाँ पे कि वो चीज मत देखना कभी भी, ऑलवेज लुक फॉर एरिया में यूनिट स्क्वायर होता है और वॉल्यूम में यूनिट क्यूब। क्यूब होता है, ये याद रखना आप। एरिया कहीं भी हो क्यूब मत लिखना, ऑलवेज स्क्वायर लिखना। इज दिस क्लियर विद यू नाउ दिस वन? यस सर। अच्छा, अब देखो एक क्वेश्चन इसमें और है, सेकंड पार्ट, जस्ट टेकिंग द प्रॉब्लम। कैन यू रीड दिस स्टेटमेंट? The height corresponding to the longest side. Long, which is the longest side here in this? Sir, this QR, RQ. QR और RQ, हाइट corresponding to longest side पूछा मुझसे, ठीक है। PR, हाँ, PR. नहीं PR हाइट नहीं होता, हाइट होता है परपेंडिकुलर लाइन। हाइट क्या होता है? परपेंडिकुलर। अब corresponding साइड मींस QR पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखो ये एक लाइन ड्रॉ हो गई यहाँ पे, कैन यू सी दैट? Yes sir. परपेंडिकुलर का सिंबल क्या होता है? ऐसे, डू यू नो दिस? Yes. ये क्या बना, इस सिंबल को क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है इसका? 90 degree. 90 डिग्री बना रहा है, राइट, गुड, ओके। सो वी हैव ड्रॉन इट एंड वी कैन से दैट this name I am telling RQSPS, what name I have, नहीं S तो ऑलरेडी लिया हुआ है, हम PZ ले लेते हैं, क्या नाम नेम लेते हैं हम? PZ। Z. तो PZ की हाइट हो गई H, हमने क्या ले लिया? H। अब एक बात बताओ, एरिया इस फॉर्मूले से निकालें या एरिया के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दें, एरिया तो एरिया रहेगा, एरिया सेम रहेगा। तो एरिया सर और तो एरिया राइट का, एंगल ट्रायंगल को निकाल सकते हैं। वेट, एरिया का वैल्यू ऑलरेडी मिला हुआ है मुझे, एरिया Yes. की वैल्यू निकाल रखा ना हमने। Yes sir. ओके, अब देखो मैं इस सेम प्रॉब्लम के लिए क्या करूंगा, आई विल राइट इट डाउन हियर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, already I have the answer with me as 864 centimeter square, right? Yes. We know that another formula of area of triangle is half into base into height. What we know that? Half into base into height. Oh, give me a moment, I think एक second लगेगा, yeah, half into base into height. Can we write down this one is 864 centimeter square? Yes. Corresponding base बोला था, that means which base I have to consider? 60, can you see that? Yes sir. So I will take it out here, half into base as a 60, height I Height, don't know, H. so I will take it H, 864. I can cancel out, this is 30, so H will be how much? 64 divided by. डिवाइड बाय 30, और ये देखो यहाँ पे ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे ये 30 सेंटीमीटर, राइट? Yes. सो जो भी डिवाइड होगा करो जरा, 864, 28.8 सेंटीमीटर, दिस इज द हाइट। डू यू क्लियर? Yes sir. अब समझ में आया कैसे करेंगे? Yes sir. कोई प्रॉब्लम इसमें? No sir. अच्छा, तो एक जल्द, अच्छा नोट करने की जरूरत नहीं, वो तो वीडियो में रहेगा, तो समझ में आया कैसे करना है इसको? Yes sir. अच्छा, एक चीज जो है मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके लिए, गिव मी अ सेकंड। मैंने आपको बताया था इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में, राइट? Yes. व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलैटरल ट्रायंगल? Whose all the sides are equal. ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है।
सो अभी मैं काम करता हूँ, मैं एक ट्रायंगल ले ही लेता हूँ, जस्ट होल्ड सेकेंड। सो गिव मी अ मोमेंट प्लीज। देखो मैंने यहाँ ले लिया, इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर दूं। ओके, कैन यू सी दिस? Yes. अच्छा, अभी इसमें मैंने सबका साइड, इसको मैं नाम दे देता हूँ P Q R। क्या नाम दे दिया मैंने? PQR. अब ये कहता है 3 इक्वल साइड्स, तो अगर मैं इस साइड को A मान लेता हूँ, इस साइड को A मान लेता हूँ, इस साइड को A मान लेता हूँ, तो तीनों साइड इक्वल हो गए। Yes, sir. अच्छा देखो, मैं काम कर रहा हूँ, मैं आपको ना एरिया का फॉर्मूला बता देता हूँ पहले ही, आप इसको याद करना। ये फॉर्मूला होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल, आप नोट कर लो। फॉर्मूला होता है √3/4 टाइम्स साइड स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? हेलो, √3/4 into side square. इसको जरा नोट कर लो, मैं अभी इसको प्रूफ करूंगा। ये मैंने पहले ही आपको दे दिया कि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप इसको याद कर लेना, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव इट। कि जो मैंने फॉर्मूला दिया वो गलत दिया, सही दिया, कैसे, राइट? तो अभी हम उसको प्रूव कर लेते हैं आपके लिए, बट आप इतना याद रखोगे तो काम आपका हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब देखो, प्रूफ के लिए हम वही हीरोइंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। हम समझ के चल रहे हैं कि मेरे लिए सारे साइड्स अलग हैं। मेरे लिए क्या है? ऑल साइड्स आर डिफरेंट। ओके, सो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, कोई मुझे बताएगा? Sum of all sides. Yeah, 3 into side. सो कैन आई राइट इट डाउन दिस वन एज 3a? Yes, sir. सेमी पेरीमीटर s की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/2. गुड। एरिया अगर मुझे लिखना है तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे s माइनस a, s माइनस a, s माइनस a। कैन राइट दैट? Yes. अच्छा, s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। सो s की वैल्यू है 3a/2, सो 3a/2 माइनस a, 3a/2 माइनस a, और 3a/2 माइनस a। कैन वी राइट दैट? Yes, sir. ओके, अब एक काम करो, 3a/2 ये वाला तो लिख दिया, इसकी वैल्यू क्या होगी? जरा मुझे माय सब्ट्रैक्ट में बताओ। सब्ट्रैक्ट क्या करना है, मैं वापस से लिख दे रहा हूँ। यू नीड टू सब्ट्रैक्ट 3a/2 माइनस a। तो देखो ये डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ 2a minus 2. 2 नहीं. नहीं, 2a माइनस 2 नहीं होगा, नहीं. इट विल बिकम हियर a/2। कैसे? देखो एलसीएम हो जाएगा 2। हेलो, Yes, yes. एलसीएम हो जाएगा 2, सो इट विल Yes, बिकम sir. हियर 3a, और यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, सो माइनस 2a। सो इट विल गिव मी हाउ मच? इट विल गिव मी a/2। Yes. तो मैं इसके जगह पे लिख दूं a/2, Yes. इसके जगह भी सेम हो जाएगा, Yes, sir. और इसके जगह भी सेम हो जाएगा, करेक्ट? Yes. अब देखो जरा यहाँ पे, जरा सा आप यहाँ दिमाग लगाओगे तो ये a/2 है, ये a/2 है, ये a/2 है, ये a/2 है, एक 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा है। कैन यू सी दैट? Yes. तो जरा सा आप यहाँ पे दिमाग लगाओ, तो मैं काम करता हूँ, गिव मी अ मोमेंट। मैं नेक्स्ट पेज जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फॉर नेक्स्ट पेज। ओके, सो इन द नेक्स्ट पेज कैन वी राइट इट डाउन दिस वन एज 3 टाइम्स a/2, 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 a/2। कैन वी राइट लाइक दिस? Yes. अच्छा, अब देखो, अब इसमें से कौन कौन पेयर बना लेता है, ध्यान से देखो। पेयर बनाता है ये और ये, तो जो पेयर बना रहे हैं उनको बाहर ले लो। कौन पेयर नहीं बना रहा? Who is not making the 3. pair? 3. 3. 3. So we will leave as it is. So it will become a square by 4 times √3. That's why can I write it down this one as √3/4 times a square? सर ऊपर तो रूट सारों पे था और नीचे सिर्फ 3 पे क्यों आया? ओके, मैं एक एग्जांपल अभी लेता हूँ। 200 है रूट अंडर, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है।
Can we write down 200 as 2 times 10 times 10? Can you write like this? Yes. ये पेयर बना लिया. Yes. So पेयर बनाया तो आउट हो गया. कौन पेयर नहीं बनाया? Who is not making 2. pair? 2 is not making pair. 2. So this is the value 10 root 2. अब एक काम करो, आपके पास कैलकुलेटर है क्या? Do you have the calculator? So yes, I have. Okay. रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414. अच्छा आप एक काम करो, आप इसको लिखो, आप 200 का रूट निकालो बाय यूजिंग कैलकुलेटर. और एक मिनट. बाय यूजिंग कैलकुलेटर डायरेक्टली 200 का रूट निकाल दो. Do it fast. I'm bringing the calculator. Okay. It's 14.142. और मैंने क्या लिखा है बाय हैंड? 14.14. इट्स सिमिलर राइट. सो याद रखो, जो पेयर नहीं बनाता वो रूट में रह जाता है. जो पेयर नहीं बनाता वो रूट में रह जाता है. दैट्स व्हाई दिस 3 इज नॉट मेकिंग द पेयर. दिस 3 इज, हाँ, ऐसा क्यों होता है? नो, दिस इज द रूल. जो पेयर नहीं बनाएगा वो अंदर रह जाएगा. स्क्वायर रूट में नहीं पढ़ा है आपने? सर ऐसा तो नहीं पड़ा कि बाहर ऐसे अंदर रह जाता है. ओके, नहीं नहीं नहीं, देयर इज अ रूल. जो भी पेयर नहीं, देखो यहाँ पेयर नहीं बनाया ना, देखो मैं तो एग्जांपल दे दिया ना आपको. ये 2 पेयर नहीं बनाया ना, तो 2 पेयर नहीं बनाया तो अंदर रह गया रूट के, और रूट की जो वैल्यू थी वो मैंने लिख दी यहाँ पे. तो देखो आंसर सेम आ रहा है. मैंने तो हैंड कैलकुलेशन किया. आपका कैलकुलेटर गलत बताएगा क्या? नो नो. मैंने तो हैंड कैलकुलेशन करके दिखाया आपको, राइट? यस. तो ये तरीका होता है. दिस इज द रूल. इज द मीन्स कि जो पेयर नहीं बनाएगा हम उसको रूट अंडर में छोड़ देंगे एज इट इज. हम उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे. दिस इज द रूल. आपने शायद नहीं पढ़ा या टीचर ने नहीं बताया होगा, सो दैट इज द हिज मिस्टेक. ओके, बट कोई बात नहीं. अब से जान लो, जो पेयर नहीं बनाया उसको हम छोड़ देंगे अंदर में. क्लियर है? सर पेयर क्यों बनाना होता है हमें? क्या? पेयर क्यों बनाना होता है? क्योंकि हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं. स्क्वायर रूट का काम ही होता है पेयरिंग करके निकालना. स्क्वायर रूट का जो रूल है, स्क्वायर रूट हम जब सॉल्व करते हैं, अगर हम क्यूब में निकालेंगे तो हम 3 पेयर्स बनाएंगे. यस, वी हैव टू मेक द 3 पेयर्स. आई विल जस्ट शो यू, गिव मी अ मोमेंट. अभी देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं. मेरे पास एक एग्जांपल है 8 into 8 into 8. हाँ, अब देखो मैंने एक एग्जांपल लिया 512 का. क्यूब रूट ऑफ 500, क्या इसको बोलते हैं हम? क्यूब रूट ऑफ 512. अब देखो इसका मैं एग्जांपल लेके बना रहा हूँ, ध्यान देना जरा. 2 से कर सकते हैं क्या डिवीजन इसको हम? यस सर. कितना जाएगा? 206. नहीं, 256. चेक इट. फिर 512 है ना? हेलो. ओके ओके ओके. यस. यस. अगेन 2 से कर सकते हैं? यस सर. सो अगेन 2 से किया तो 128 आ गया. 128 आ गया. अगेन 2 से करेंगे तो ये कुछ 64 आ जाएगा. 64. अगेन 2 से मैंने किया तो ये 32. अगेन 2 से किया तो 16. अगेन 2 से किया तो 8. अगेन 2 से किया तो 4. अगेन 2 से किया तो 2. ठीक है, बहुत सारे 2 हो गए. ओके, नो प्रॉब्लम. अब मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे क्यूब रूट. कितने 2 हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब चलो पेयर बनाते हैं. ये क्यूब रूट है ना? दिस इज द क्यूब रूट. यस. तो हम पेयर कितने नंबर्स का बनाएंगे? 3 नंबर्स का. 3 सेम नंबर, आइडेंटिकल नंबर. ऐसा नहीं कि आपके पास नंबर है 5 6 8 और आपने इनको बोल दिया जी पेयर. नो, दिस इज द रॉन्ग. सेम नंबर का पेयर बनेगा. क्लियर है? यस सर. अब देखो, तो ये तीनों पेयर बना लिया तो इससे एक नंबर नीचे ले लो. ये तीनों पेयर बनाया तो इससे एक नंबर नीचे ले लो.
ये तीनों पेयर बनाया तो इससे एक नंबर ले लो नीचे, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, सो इट विल बिकम हियर 8। एम आई राइट? जरा आप Yes. चेक कर लो, कैलकुलेटर है ही, 8 टाइम्स 8 टाइम्स 8 कितना होगा, चेक कर लो जरा। 512। सो दिस इज द रूल, डू यू अंडरस्टैंड? Yes. अभी मैं क्वेश्चन और लेता हूँ, गिव मी अ मोमेंट, जो कि आपको हेल्प करेगा। बिग नंबर्स, आई हैव अ नंबर 3375। आई एम टेकिंग द नंबर 3375 and I have cube root. क्या है मेरे पास? Cube root. Cube root है. Okay, so let's work out. 3375. So can I go by 5 directly? Okay. Yes. So it will give me 675. 675. Again 5 से गए तो 135. Right? Yes. Again 5 से divide करो. 27. So 5 से कर दिया तो ये दे देगा मुझे 27. Then 3. 9, then 3. अब देखो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, क्यूब रूट 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ये पेयर ये बनाया तो 5 आउट, ये पेयर बनाया तो 3 आउट, तो अब ये कितना हो जाएगा 15। जरा चेक करो, 15 इंटू 15 इंटू 15 कितना दे होता है? 3375. आ रहा आंसर? Yes, sir. ओके, अब इसमें भी एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान देना। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, जस्ट होल्ड सेकेंड। 64 into 2. I am taking 128 का क्यूब रूट। क्या ले रहा हूं मैं? 128 का cube root. क्यूब रूट, ठीक है। अब ध्यान दो जरा, ये जो क्यूब रूट्स थे, ये जो क्यूब रूट्स थे, these are called as perfect cube root. This also known as perfect cube root. Cube root. क्यों परफेक्ट क्यों बोलते हैं इसको, क्या क्या रीजन है परफेक्ट बोलने का? बिकॉज क्योंकि इसके क्यूब रूट में जो आंसर आएगा वो होल आएगा, होल नंबर आएगा, सो दे आर कंप्लीटली क्यूब रूट में पॉसिबल है, राइट? यस। सिमिलरली इसको जो है, ये जो एग्जांपल मैंने लिया था, नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये होल नंबर नहीं दे रहा मुझे, राइट? वैसे ही मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, 128 देख रहे हो आप? यस। अब देखो 128 को मैं 2 से करता हूँ, कितना हो जाएगा? 64, 32, 32, 16, 8, 8, 4, 2. 4 and 2। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितने हैं 2? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, चलो पेयर बनाते हैं। तो अब देखो मैं इसको पेयर बनाता हूँ, इट्स मेक्स पेयर, सो True. बाहर ले लिया, इट्स मेक्स पेयर, Yes. बट दिस डज नॉट मेक अ पेयर। सो हम इसको, अच्छा यहाँ पे क्यूब रूट लिखना भूल गया मैं, इसको हम एग्जैक्टली ऐसे लिखेंगे। सो द आंसर विल बिकम 4 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 2। क्या हो जाएगा आंसर? 4 times cube root of 2. So this is not perfect cube, not perfect cube root. Do you clear now? Yes, sir. Difference समझ में आया? Yes. Is it clear? Yes. Okay, ठीक है। तो अभी ये हमने आज जो है इसमें देखा है कि हमने ट्राइंगल्स का इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला मैंने प्रूव करके आपको दे दिया, राइट? कोई प्रॉब्लम Yes. इसमें? No. ओके, सो आपको मैं ये वीडियो जो है शेयर करूंगा, ओके, एंड आई विल शेयर आफ्टर half an hour. Fine. Okay, sir.
Yeah, so you can recognize all things what you have learned in the session, and you can see anytime. Fine. Yes. तो सभी कुछ समझ आया या कुछ नहीं भी क्लियर हुआ? अब जो आज पढ़ाया मैंने, आई एम आस्किंग फॉर दैट. No, clear, clear. क्लियर है? ओके, ठीक है. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद यू. ओके, फाइन. Okay, sir. या, ओके, बाय, टेक Thank you, केयर. sir. या, ओके.